Hello and a very warm welcome to each one of you. Thank you, Juhi, and thank you, Komal, for joining in. We are reading The Power of the Subconscious Mind, chapter number 9, How to Use the Power of Your Subconscious for Wealth. हम सब चाहते हैं that we should be wealthy, rich. चाहते हैं ना? जरा एनर्जी के साथ बता दो. Yes. Yes. Yeah, Wonderful. all the good things are always welcome. Wonderful. Chalo, let's hear it from Juhi, since Juhi has read this chapter. Juhi, what were your takeaways as you went through the chapter? It is like many of us face financial difficulties and we think that things are not working for us, even though we are doing a lot of hard work and means I do affirmations and everything and every manifestation things uh, I have tried on, but nothing works. So, in this chapter, it clearly mentions that uh, it happens because your means you have not convinced your subconscious mind. The only way to become, it is our belief that only way to become wealthy is the sweat or hard labor. So, even though we are saying affirmations, doing things to manifest, but in the and in depth of mind we feel lack, right? Hmm. So that is the reason that we are not able to manifest. And what is that one emotion? Emotion. That what is that one emotion which causes the lack of wealth in our lives? Do you remember that? It must be uh fear. insec- Fear? Insecurity and fears. And Komal क्या बोल रही है? Same fear. Envy and jealousy. Fears ही बोला उन्होंने. It's envy and jealousy. Okay. I think you could not read that part of the book. Okay. Mhm. What else? What else? Yes, so even though we keep on saying I am a millionaire, I am a millionaire, to build that mental stability means some we do affirmations, Hmm. but somewhere there is lack and insecurity. Hmm. I mean, they don't know how to tap their subconscious mind. They Hmm. are unacquainted and inexhaustible. So the ideal method for building wealth is consciousness. Like we often say, I need wealth and success. The wealth and success are two very powerful words. Hmm. So you need to anchor in your mind uh, these words uh, as they create substantial power within you. Hmm. So we need to say the things like they are not positive. I mean, they are not they don't have the negative impact on us. So, like it is mentioned, the reasons are given why affirmations fail is like people keep on saying, I'm prosperous, I'm wealthy, but they are lying. They feel they are lying, that this Hmm. doesn't resonate their current life, right? So, it is this statement is obviously rejected by conscious mind, Hmm. and what we achieve is the opposite of what we affirm. So it is said that when it does not produce a mental conflict or argument within us, Very good. it attracts the wealth. Yes. So your subconscious mind accepts what you really feel to be true, Hmm. not just ideal words. So dominant idea or belief is always accepted by subconscious mind. Hmm. And how to avoid mental conflict is do this by the
means as you wake up or at night, because these affirmations that doing it at that time will arouses without any argument. Hmm. So at that time you need to repeat positive things and feel it, so that it is uh, it goes directly into subconscious mind. Mhm. Your subconscious mind accepts your fears and negative statements as your request and proceeds in its own way that brings obstacles and delays and limitations in your life. Hmm. And whatever, like your subconscious mind multiplies and magnifies whatever you deposit into it. Hmm. So you should busy your subconscious mind with positive things that you keep on affirming. So find the thoughts which you keep on depositing in your subconscious mind bring the forth abundance and prosperity. Mhm. And why nothing is happening is due to fearful thoughts. Hmm. So uh, suppose we often keep on saying I'm not able to keep the to make the payment, so further payment will also stop. Like we are putting a negative statement always, so we need to reframe it. And I will be proposed prospered in all my ways. And the true source of wealth, your subconscious mind is never short of ideas. Whatever challenges you are facing is always installed on the answer is always installed in your subconscious mind. It could be any area of your life. The point is to emphasize uh, is that to convince your subconscious mind that wealth is yours and that it is always circulating in your life, and you will always and inevitably have it regardless of the form it takes. Yes. So I have read it till here. Wonderful. Wonderful. The thing here that marks a lot of that we have to take care of is what is the true feeling behind whatever we are Right. saying. Affirmations हम जो मर्जी कर देते हैं वो हम फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग उस We एफर्मेशन are को not. बोल रहे हैं एंड देयर इज अ कंफ्लिक्ट इन आवर माइंड दैट इज हैपनिंग कि यार ये मैं बोल रही हूँ पर है तो नहीं, रियलिटी तो नहीं. So how does the affirmation need to be? Affirmation need to be in such a way that we actually agree with it, right? तो इसके अंदर इसने कहीं पे एफर्मेशन एक दिया है, आई एम, लेट मी टेल यू. I've read first page and it is telling about the story of a man who is convincing, who is telling about. Yeah, you told me to read, so I've done that. What he is telling that I'm earning 10,000. It's like 75,000 per year. So it Hmm. means 10,000 on an average. He's earning more, something around 8 or 9 per month. So it would be 2,000 per week. Hmm. But other person is earning just 100 per week, or 500 or 100. So it's quite less, and he says they know more than me and they can manage more than me. Then why this person who this chapter is about is earning 2,000 per week? It's Hmm. about his subconscious mind. So chapter is starting here. Let me Yes. end. Wonderful, wonderful. Great, Good Komal. thing now I just did. Very And good. just phrased it in 2 lines, because when we speak it comes quickly, but when we are reading, then also it's quicker, but it has a lot of words. Yeah. Yes, And absolutely. the second he's telling about that how he has used the power of subconscious, that change your mind, wrong ideas. This is, your words have power to cleanse your mind Hmm. of wrong ideas. This line, Yes. your words have power to cleanse your mind of wrong ideas and to instill right ideas in their place. Every line is so beautiful. Of actually, that's why the book has so many words. Obviously they edit, they do a lot of hard work. Every book
even if summaries are fine, but every line has some or the other meaning, I will say. We can find meaning in so many lines at times. Like you can have wealth, everything you need, and plenty to spare. Your words have power to cleanse your mind of wrong ideas and instill new ideas, right ideas. Like my Yes. brother, my sister, they don't know about this. Suppose if they are not learning about subconscious mind, he is doing a lot of hard work. And brother, because maybe his idea is about hard work is equal to success. So he's saying, why they are, this company is calling him outside also, like abroad also, and they are giving this here work of what he's currently doing plus extra. So I was just thinking, why it is always happening? Like he's getting more of work. Maybe he has this idea of not to blame, just to think about. We all have actually, not Yes. him. That hard work आज is मेरे equal to हस्बैंड मेरे को success. बोलते हैं टुडे व्हाइल आई वाज गिविंग माय हस्बैंड हिज डिनर, मैंने कहा कि देख लो खाना बना दिया है मैंने आपके लिए, खाना खा लो। एंड ही इज लाइक हाँ वो तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा हेलो, बनाना कुछ नहीं पड़ता यहाँ पे, मैं अपनी चॉइस से बना रही हूँ। Yeah, actually. बनाना कुछ नहीं पड़ता, मैं चाहूंगी मैं कल नहीं बनाऊंगी, मैं बता रही हूँ, डोंट फोर्स मी, डोंट यू टेल मी कि कल बनाना तो पड़ेगा। नहीं बनाएगी नहीं तो खाएंगे कैसे? मैंने कहा आई कैन हायर अ कुक। हाँ Hmm. ये बात तो है। एंड आई एम लाइक हाँ ओपन योर माइंड हाँ, बाबू। हाँ कि पढ़ेगा वाला कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। लाइक मेरे हम्म वन डे आई वाज टॉकिंग तो अलाउड वर्ड आ गया हम्म बाहर। लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर इन लॉ, ये हम्म ना उनको आंटी को ना अलाउड नहीं है। शी वाज सेइंग नथिंग इज लाइक अलाउड वाला वर्ड, मतलब हम्म देन आई सो हाँ कि मेरी लैंग्वेज में अलाउड बार बार आ रहा था इन हम्म दैट पर्टिकुलर डे और व्हेन वी वर ट्रैवलिंग। तो आई वाज लाइक आंटी, उनका धर्म में नहीं अलाउड था। सो इट इज इन रियल सेंस एक्चुअली। आई वाज टॉकिंग ऑफ दैट कंसेप्ट हम्म where if she's doing Vipassana, she's not allowed of some religious things. So it हम्म was normal word for me to say aloud. Obviously, we have to say aloud. वो नहीं कर सकती है ना, वो फिर आप धर्मा नहीं कर रहे हो प्रॉपर उनका वाला। If Art of Living says me, don't do this, हम्म then either I'm not obeying them, whatever the conditions, not obey, not allowed. These words may seem different to the this someone, but these are there now. Yeah, in that thing it is there. For So, Vipassana, they Komal, what don't. do you think? Why do the affirmations of wealth fail? Why do affirmations of health of wealth fail? Hmm. Because we are not believing when we are saying the affirmations. Hmm. We are not changing the subconscious beliefs. It can be. क्योंकि हमारे दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? Yeah, it will need work. Hmm. And it says your subconscious accepts what you really feel to be true, not just idle words or statements. ठीक है ना? तो हमारे को वी हैव टू मेक श्योर वॉट एवर वी आर सेइंग। सो फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने एक दिया है, दिस एफर्मेशन दिया है कि सिट डाउन इन योर ऑफिस, बिकम क्वाइट एंड रिपीट दिस स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। अभी अगर मैं ये बोलूंगी माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, दैट माइट नॉट ब्रिंग एनी कंफ्लिक्ट इन माई माइंड। क्यों? क्योंकि जो पिछले से पिछले साल या 2 साल पहले था उससे तो बेटर आज हूं और उससे आगे अच्छा हो रहा है। इट इज इन द प्रोसेस। सो it is not that I will be conflicting on this. Likewise, they have given another affirmation by day and by night. I am being prospered in all of my interests. तो जब अगर मैं इन द हैपनिंग हो रहा है ना, इट इज while it is happening, it gives us very least percentage of us questioning it, right? तो हम जब हम कहते हैं ना कि आई एम abundant, आई एम wealthy, आई एम दिस, आई एम दैट, तब हमारे दिमाग में आता है यार हूं तो हूं नहीं, बोले जा रही हूँ। बट when I say that I am creating a lot of wealth day in and day out, है ना, या फिर माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, सेल्स होंगी तो पैसे आएंगे, राइट? तो हमारे को वो कंफ्लिक्ट कम से कम आएगा। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर विच सेज कि जो
ओरिजिनली एक्चुअली फील कर रहे हो इज दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू कम योर वे. And your subconscious give you the compound interest was a beautiful way of saying ki what you dwell on you attract it in multiples. नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आएगा. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सोचना है, किस बारे में सोचना है और किस चीज को अपनी रियलिटी बनाना है. ठीक है. एंड देन इट सेज व्हाई नथिंग हैपेंड. तो वो कहते हैं कि जब आप एक व्हेन यू सो अ सीड, डू यू गो बैक एंड उसको वापस खोल के देखते हो कि उगना शुरू हुआ कि नहीं? नहीं, राइट. लाइकवाइज जब हम किसी चीज को अपनी एफर्मेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यू नो फॉर एग्जाम्पल यही बोल देते हैं माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे. व्हेन आई एम सेइंग दिस और उसके 15 मिनट के बाद ही मैं बोलना शुरू यार सुबह से सेल नहीं हुई है, 2 दिन हो गए कोई सेल नहीं हुई है, तो व्हाट हैपेंस? एक तरीके से एक बार में आप कह रहे हो पॉजिटिव एफर्मेशन, उसी के 15 मिनट के बाद आप उसी पॉजिटिव एफर्मेशन को नेगेटिव कर रहे हो बाय क्वेश्चनिंग इट कि यार 2 दिन से तो कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं आया, कोई वो 1-on-1 कॉल नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है. तो दैट तो उससे क्या होता है जब आप पॉजिटिव में गए एंड देन यू आर सेइंग समथिंग नेगेटिव, यू कम टू द न्यूट्रल. व्हेन यू से समथिंग नेगेटिव, वो नीचे जा रहा है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. इसको नेगेटिव को न्यूट्रल पे लाने के लिए आपको जल्दी से उसको कन्वर्ट करना इनटू समथिंग पॉजिटिव एज सुन एज यू ब्रिंग इट, एज सुन एज यू बिकम अवेयर कि अरे मैंने तो गलत बोल दिया. क्रॉस 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 कट 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 कर देते हैं ना, हम बोलते हैं ओ कट 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 कट, मैं तो ये बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ. तो इट कम्स टू द न्यूट्रल, इट डज नॉट गो टू द पॉजिटिव. अभी भी पॉजिटिव के लिए उसको फिर से पॉजिटिव बोलोगे तो इट गोज इनटू द पॉजिटिव जोन. ठीक है. ट्राइंग टू मेक मीट्स एंड द रियल कॉज. दिस इज व्हाई दे से कि दे आर कंडेमिंग वन डिजायर एंड वांट. डिजायर और वांट में जब तक आपका डिफरेंस रहेगा तब तक द क्विकेस्ट वे टू कॉज वेल्थ, to take wings and fly, is to criticize and condemn others who have wealth more than you. हाँ, हैव यू एवर सीन, हम इंस्टाग्राम पे किसी की फोटोज देखते हैं, अरे ये तो घूमने गई है, कितना एंजॉय कर रही है, शिट यार मेरी जिंदगी में नहीं है, ये तो बहुत एंजॉय करती है. द मोमेंट यू डू दैट यू आर क्रॉसिंग आउट दैट abundance towards yourself. So every time you see anybody earning a lot of money, cheer for that person, be happy, celebrate. Wow, amazing. Why? Because that is how you tell that you are also worthy, you are also going to attract it. Because वो compound interest के साथ आपके पास आता है. Then he says कि the one emotion that causes the lack of wealth in the lives of many is envy. जब भी आप किसी कॉम्पिटिटर के पास बहुत सारे पैसे देखते हो, किसी और के पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, कोई बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, कोई बहुत सुंदर ज्वेलरी पहन के घूम रहा है, कोई बहुत सुंदर कपड़े पहन के घूम रहा है, उसको देख के जब जब आप एनवियस होते हो तब तब आप अपने अकाउंट में से उन सब चीजों को डिपॉजिट करते हो, तब तब आप अपनी लाइफ में उन सब चीजों को आने से रोकते हो. एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुली सेड इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स एज वेल कि जिस चीज को आप अप्रिशिएट करोगे वो भगवान आपको देगा. यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव इट टू यू. एंड द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू क्रिब एंड क्राई अबाउट फॉर अदर्स, the universe will understand that this is something that this person does not like and I don't have to give this to him. ठीक है. तो what you have to say when you find somebody, the way to overcome this emotion is to say to yourself, isn't it wonderful? I rejoice in that man's prosperity. I wish for him greater and greater wealth. ऐसे सरदारों में बोला जाता है सरबत का भला मांगो. सरबत का भला जब मांगोगे तो आपको भी भला ही होगा. Then another star that I have put is claim immediately that you truly wish for him greater wealth in every possible way. जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, गलत आ सकता है, वी ऑल आर ह्यूमंस राइट, द मोमेंट यू फील कि अरे यार इसके पास तो बहुत पैसा है, आई डोंट नो कैसे पैसे करें, द मोमेंट यू रियलाइज दिस इज समथिंग दैट यू हैव सेड रॉन्ग, इमीडिएटली टर्न इट इनटू कि आई विश कि इस बंदे के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो. उससे क्या होगा, जो नेगेटिव में चला गया था वो एटलीस्ट न्यूट्रल पे आ जाएगा. ऑलराइट.
रबिंग आउट ग्रेट मेंटल ब्लॉक ऑफ वेल्थ। सो हमारे को कई बार लगता है कि लोग पैसे जो कमा रहे हैं डिसऑनेस्टी से कमा रहे हैं, उसकी वजह से सी इज वरिंग अबाउट हिम। If you are worried and critical about someone who claims is making money dishonestly, ceases worry about him. You know such a person is using the law of mind negatively. The law of mind will take care of him. You don't have to worry about that person. जिसको जो कर रहा है, जो जैसे कर रहा है करने दो, हमको कोई लेना देना नहीं है। What we want is we want wealth for our own self. So be careful not to criticize him for reasons previously indicated. कि प्रीवियसली इंडिकेटेड यही था कि अगर आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, अगेन यूनिवर्स इज गोइंग टू थिंक दैट यू आर क्रिटिकल ऑफ इनकम कमिंग योर वे। ठीक है, रिमेंबर द ब्लॉक और ऑब्स्टिकल टू वेल्थ is in your own mind. You can now destroy that mental block. This you may do by getting a mental good term with everyone. क्यों कहते हैं कि हमारे को ज्यादा किसी के साथ अगर बनी नहीं रही है तो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। कोशिश अपनी तरफ से ये करनी चाहिए कि मेंटली हम हर किसी को ब्लेस करें, हर किसी के लिए खुश हो। रीजन फॉर दैट इज बिकॉज वी वांट गुड फॉर आवर ओन सेल्फ। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप एंड ग्रो रिच। व्हाट डज दे से? वेल्थ क्वाइटली, इजीली एंड फीलिंगली। As you go to sleep at night, practice the following technique. Repeat the word wealth quietly, easily, and feelingly. Do this over and over again, just like a lullaby. जैसे छोटे बच्चों को लोरियां सुनाते हैं, वैसे कि हमारे को अपने आप को बोलना है वेल्थ। जब वेल्थ बोलते हैं तो आपको क्या फील होता है? वाह, क्या दिखाई दे रहा है। बहुत सारे आजकल ना वो इंस्टाग्राम पे भी आ रहे होते हैं, मनी इज शॉवरिंग, ऐसे बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स बह रहे हैं। Be in that energy. You should be amazed at the results. Wealth should flow to you in avalanches of abundance. This is another example of magic power of your subconscious mind. जब आप ये करोगे, जब आप हर रोज रात को सोने से पहले वेल्थ के बारे में इजीली, एफर्टलेसली, फीलिंगली सोचोगे तो आपके पास वेल्थ आएगी ही आएगी। वैसे बाय द वे, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में किसी ने रात को सोच के सोए थे? हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट बिफोर गोइंग टू स्लीप? नहीं सोचा? हाय, डिड यू मिस अ डे? ओ माय गॉड। अगर हम काम करेंगे नहीं, हमारे पास सारी विजडम हो, सारी नॉलेज हो, इफ वी डोंट टेक द एक्शन, आर वी गोइंग टू अट्रैक्ट इट? नो। तो आज से हम क्या करने वाले हैं कन्याओं? वेल्थ आज वेल्थ तो बोल के वेल्थ के सोने बारे में वाले सोच के, हाँ। वेल्थ हम्म। वेल्थ बोल के सोने वाले हैं। आज जरूर बोलना, ठीक है ना? चलो फिर लेट्स। भगवान का नाम नहीं लेना रात को। भगवान मिल जाएंगे भाई, भगवान चाहिए भगवान ले लो, मर्जी क्योंकि वो अपनी तो है। मेरा दिन रात ही चल रहा है। भगवान का ज्यादा चल रहा है अभी। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हम्म। मैं वही परप्लेक्स में आ जाती हूँ हम्म। कि मैं मम्मी को बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछती हूँ। मम्मा संत तो नहीं बन जाऊंगी? मम्मा ये तो नहीं वैसे हो एक बात जाएगा? बताऊं, कोई भी संत इस दुनिया में ना गरीब नहीं है। एवरी नो। गॉड, एवरी मंदिर दैट इज नोन हैज वेल्दी अमाउंट ऑफ मनी। इतना ओके। पैसा है तभी तो इतना दान करते हैं, तभी तो इतने लोगों को लंगर खिलाते I हैं। thought I thought the one who is praying will pass these stages and will not enjoy these things. I thought that way. Yeah, So that is wealth also is belief also now. another kind of spirituality, has nothing to do with wanting more money. If you are a good person, you should have a कनिका, आई एम lot of हर्ड वो money. अपने आप आता है। मुझे मेरा भी ये बिलीफ है, मैंने सुना है ये वेल्थ फिर अपने आप आती है आपके पास। बिकॉज जब आप ओवर ग्रो कर जाते हो सारे कंसेप्ट से, यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट। ये भी बड़ा डिफरेंट है। ग्रीड नहीं है, आस नहीं कर रहे। तो साधु संतों के पास अपने आप आ रहा होता है, पॉकेट फुल्स होती है। एग्जैक्टली। And what do they do with that money? दे डोनेट, दे गिव, दे हेल्प पीपल। व्हाट कैन है दे ना? डू? So that is why हाँ। so if you do you think you are a good person? या पक्का?
Definitely, just it's like cleaning little bit, like we are cleaning our मतलब जो कुछ है वो क्लीन कर रहे हैं, और जो भी रहता है उसको क्लीन कर रहे हैं. If there are some of the things, जैसे अभी आया jealousy, envy, हम्म we are cleaning these things. Good तो व्हाट person तो विल आपको हैपन इज, जब आपके पास इमीडिएटली पैसे आएंगे, व्हाट विल हैपन? सबसे पहले आप अपना घड़ा भरोगे। मेरे को ये मन है, मेरे को ये मन है, मुझे ये मन है, कितना भर लोगे? जब भर जाएगा फिर क्या करोगे? अपने आसपास के लोगों का, मेरी मम्मी को, मेरी मासी को, मेरी चाची को, मेरी ताई को ये मन था खरीदने का, मैं लेके दूंगी, मैं लेके दूंगी। जब उनका सबका भी घड़ा फुल हो जाएगा फिर उसके आगे बढ़ोगे आप, उनसे आगे अपने नेबर्स, अपने आसपास के नेबर्स को देखना शुरू करोगे, यार वो बेचारे के पास ये नहीं है, लेट मी गेट दैट। ऐसे करके आगे 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 आगे, जब आपके नेबरहुड हो जाएगा फिर आप अपनी लोकेलिटी में करोगे कि यार यहाँ पे बहुत गरीब बैठे होते हैं, इन सब के लिए चल मैं घर बनवा देती हूँ, एक घर में ये yes, सारे रह जाएंगे। अच्छा yes. आज इनको इनका खाना भिजवा देती हूँ। एक लंगर वाला लड़का रख दिया, वो हर रोज उनको खाना भेज रहा है, नो बडी इज इन द बेगिंग जोन नाउ। ऐसे कर करके ही अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप दुनिया का कल्याण कर पाओगे। हाँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आज मैंने रेकी के सेशन में पूछा था मैम से. मैंने कहा कि आई फील लाइक उनके पास नहीं है, सपोज वो मेरा लिमिटिंग बिलीफ कि इन सब के पास नहीं है इक्वालिटी. कुछ माइंड में आया था इक्वालिटी टाइप, इन सब के पास नहीं है, किसी के पास, इमेजिन एनी वन, मतलब पूरी अर्थ में हजारों लोग. आई वॉज नॉट पर्टिकुलर, सबके पास नहीं है तो कोमल ज्यादा कैसे ले सकती है, मेरी सोल बोलती है. तो ये हम्म लिमिटिंग है ना. सेम फॉर हेल्थ. मैंने कहा तुझे तो भगवान ने ना इतनी अच्छी हेल्थ दी है शुरू से, अब लास्ट में बीमारी होगी तो ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल. यू कैन अंडरस्टैंड. सो मैम वाज लाइक इरेज कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली दीज आर जस्ट थॉट्स, बिकॉज हम्म कभी थैंक नहीं किया होगा ना अच्छी हेल्थ के लिए तो आ रहे होंगे. मैंने कहा ओके, इज इट लैक ऑफ डिजर्वेबिलिटी? आई कुड हम्म अंडरस्टैंड कि क्या आ रहा है मतलब. तो लैक ऑफ डिजर्वेबिलिटी, फिर मैम ने वही समझाया कि जब होगा, व्हाई डोंट यू आस्क लाइक दिस. तुम पेन नहीं देख पा रही हो, अगर कुछ अगर माइंड लगाओ तो इट इज लाइक यू ऑल्सो वांट देम टू ग्रो. तो वो कैसे होगा व्हेन यू हैव इट? ये थोड़ी है कि तुमको मेरी ना हो क्योंकि मैं भी उनके बीच में चले जाऊं. लाइक इधर वाई यू कैनॉट थिंक कि बाकी लोग कम, ये हाँ तुम ये नहीं चाहती हो कि किसी के पास कम हो, सो इट इज लाइक यू वांट टू गिव देम. यू हम्म कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ना. यस। तो इसलिए हमारे को, हमारे अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होने जरूरी आई हैं। फील लाइक जो द ये हीलर्स पीपल बन हु रहे आर हैं. नॉट गुड, the people who are not good, if they have a lot of money, they are going to use that money in destroying the world. The हम्म. people who are good, if they have a lot of money, they are going to work towards charities. कभी वो हर किसी को खाना खिला रहे होंगे, कभी they will be donating towards education, कभी वो बहुत सारी जो शादियां एक साथ हो रही होती है उनके लिए अभी पैसे दे आया रहे तो होंगे। आज जो लॉस एंजलिस में फायर हुआ, तो सिक्स मतलब करते तो सब हैं. सिख का आया ना पिक्चर की दे आर डोनेटिंग एंड लाइक वहाँ हेल्प हो रहा है, लंगर्स एंड एवरीथिंग. मतलब जो भी हो सकता है, दे आर डूइंग द सर्विस, उसका वीडियो आया था. यस। सो दैट थिंग ओनली. हाँ, तो इसलिए कि पैसे होने हेल्प. जरूरी हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स। कितने सारे ट्रू. डिस्ट्रक्शंस, कितनी सारी कैलेमिटीज होती रहती हैं, एनवायरमेंटल मुझे तो अभी कैलेमिटीज। लग रहा है कि अच्छे लोगों के पास मतलब वी कैन नॉट से अच्छा बुरा कोई भी नहीं है. ऑन अ सोल लेवल इट इज जस्ट ग्रोइंग पार्ट, बट स्टिल है वो कंसेप्ट तो है ना, बुरा नहीं है, बट इट इज समवन इज बिहाइंड, समवन इज यार मुझे एक हायर. बात बताओ कि ईरान एंड इराक की जो लड़ाई हुई, कितना डिस्ट्रॉय, वो कितनी विजडम थी. कभी भी ये इसी पे ही आ रही हूँ कि सोल तो सारी भगवान ने बनाई है, विजडम में पीछे हैं वो लोग. आई वाज सेइंग दिस, गुड बैड हम ऐसे कह सकते हैं, विजडम में हाँ। वो पीछे है. हम कोई लोग विजडम में थोड़ा आगे हैं, हायर कॉन्शियसनेस. हम नहीं, मतलब एनी वन और हु आर वर्किंग, या लेट इट बी. तो ये जो सब वर्क कर रहे हैं, हीलिंग और एवरीथिंग, दीज ऑल द पीपल, आई फील वेरी हैप्पी कि जो गार्गी की कम्युनिटी में होते हैं या जनरली यस। और सब. तो ऐसा लग रहा होता है कि इफ वी आर गिविंग हेयर एंड एवरीवेयर एवरीबडी, मतलब वी फील वो कॉन्शियसनेस के लिए वर्क हो रहा है. हम्म सिंपल. तो ये इट्स लाइक गॉड ऑल्सो वांट्स कि आ रहा है और ये लोग हेल्प कर रहे हैं, सम हम्म डीपर लेवल थिंग्स.
Yeah. Yes. Serve Yeah. yourself with the power of your mind. Let's quickly go through the pointers that we have discussed in this chapter. Decide to be wealthy the easy way with the infallible aid of your subconscious mind. That is what Juhi started her conversation with, कि हम लोगों को लगता है कि easy नहीं है money, wealth is not something easy, hard work, lot of वो पसीना बहाने से ही पैसे आते हैं. That is not true. You have to break that myth. ठीक है. Trying to accumulate wealth by the sweat of your brow and hard labor is one way to become the richest man in the graveyard. ठीक है. You do not have to strive or slave hard. You can thrive and easily earn money. Wealth is a subconscious conviction built into your mentality, the idea of wealth. तो वो उसने जूही ऑल्सो रेफर टू द आइडियाज कि वेल्दी जो हमारा है सबकॉन्शियस माइंड है, इट हैज अबंडेंट ideas. If the ideas are negative, we go doom. And if the ideas are positive, तो वो हमारे positive ideas can make us millionaire, billionaire, whatever we wish to become. The trouble with most people is that they have no invisible means of support. Repeat the word wealth to yourself slowly and quietly for about 5 minutes prior to sleep, and your subconscious will bring wealth to pass in your experience. The feeling of wealth produces wealth. Keep this in mind at all times. Wealth will produce wealth, health will produce health, spirituality will produce spirituality, abundance who will produce abundance, and poverty will produce poverty. अभी आपकी इच्छा है कि what is it that you want to keep in your mind. Your subconscious and conscious mind must agree. Your subconscious accepts what you really feel to be true. The dominant idea is always accepted by the subconscious mind. The dominant idea should be wealth, not poverty. ठीक है. जो भी हमारा dominating idea होगा दिमाग में, that is going to be manifested. You can overcome any mental conflict regarding wealth by affirming frequently. By day and by night, I am being prospered in all my interests. If you want, you can write this affirmation in your, जहाँ पे भी affirmations देख के पढ़ते हो ना, you can write that in there. Increase your sales by repeating this statement over and over again. My sales are improving every day. I am advancing, progressing, and getting wealthier every day. अच्छा, एक और बात जो हमने इस बारे में यहाँ पे बात नहीं करी है, दैट वाज नेवर टू राइट द ब्लैंक चेक्स. नॉर्मली स्पीकिंग हम ब्लैंक चेक्स पता है किनको देते हैं? जब हमारे को बैंक कोई लोन देता है तो हम उसको एक ब्लैंक चेक भी देते हैं. डू यू नो दैट? और वो उसके अगेंस्ट होता है कि हम कोई किस्त नहीं भर पाएंगे तो दे विल यूज दैट ब्लैंक चेक. सो स्टॉप राइटिंग द ब्लैंक चेक्स. बिकॉज उसके अंदर एक एनर्जी होती है, दैट इज देयर इज नॉट इनफ टू गो अराउंड और देयर इज अ शॉर्टेज. सच स्टेटमेंट्स मैग्निफाई एंड मल्टीप्लाई योर लॉस. तो अगर इफ यू आर साइनिंग एनी चेक, मेक श्योर दैट देयर इज सम अमाउंट रिटन इन देयर. क्योंकि देर इज अ चेक वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी होती है एक, जिसके अंदर यू हैव टू, वो द यूनिवर्स वाला जो चेक होता है. सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज हैव समथिंग रिटन देयर. Deposit thoughts of prosperity, wealth, and success in your subconscious mind, and the later will give you compound interest. What you consciously affirm, you must not mentally deny a few moments later. This will neutralize the good you have affirmed. इसके बारे में मैंने आपको पहले बोला था कि हम affirm कर रहे हैं कि my sales are improving every day, and थोड़ी देर बाद ही अगर मैं conflicting idea अपने आप के अंदर ला रही हूँ कि अरे यार 5 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कोई तो सेल नहीं हुई है, that will पॉजिटिव की जगह वो माइनस होने पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा. नो इफेक्ट एट ऑल.
Your true source of wealth consists of ideas in your mind. You can have an idea worth millions of dollars. Your subconscious will give you the idea you seek. अभी आइडियाज किसको नहीं आते हैं? जो सोचता ही नहीं है. If you want to be wealthy, if you want to be rich, there has to be some idea that you need to seek, for which when you work, you will get those ideas. मुझको मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं पता है? आइडिया क्वीन. पीपल कम टू मी व्हाट फॉर? करिश्मा बताइए, मैंने ये सोच रही हूँ, इसको इसको अपग्रेड कैसे करूं, इसका पैकेज कैसे बनाऊं. आई गिव देम आइडियाज, दे वर्क फॉर देम. दैट इज द पावर ऑफ आइडियाज. Ideas can make you millions of dollars. Envy and jealousy are stumbling blocks to flow the wealth. Rejoice in the prosperity of others. किसी के अकाउंट में पैसे आए, you should be the one who is the happiest. सामने वाला परेशान हो जाए, भाई इसको ऐसी क्या खुशी हो गई मेरे बारे में. बल्ले बल्ले sometimes होने चाहिए. yeah, sometimes obviously I agree. We are thinking उनके पास तो बड़ी जल्दी आ रहा है. बहुत हम सबके दिमाग में आता है. बट देन Yeah, हमारे को पता है कि जब हम नेगेटिव जाएंगे तो भी हमारे को न्यूट्रल कैसे करना है, बाय क्विकली अफर्मिंग समथिंग पॉजिटिव. affirming something positive, blessing or anything. Yeah, we यस. can do that. यस. और इसके अंदर इन्होंने एक प्रॉपर सेंटेंस भी लिख के दिया है. क्या बोला था? Isn't it wonderful? I rejoice in that man's prosperity. I wish for him greater and greater wealth. The moment you say something negative, अरे पता नहीं कहाँ से इसके अकाउंट में पैसे आए जा रहे हैं, जल्दी से ये सेंटेंस बोल के उसको न्यूट्रल करके खत्म कर दो. The block to wealth is in your own mind. Destroy that block now by getting on good mental terms with everyone. हमने किसी का बुरा ना मांगा, ना हम मांगेंगे, ना हम किसी के लिए किसी के बुरे में खुश होंगे. हम सिर्फ सेलिब्रेशंस करेंगे कि भाई सब खुश हो जाओ, सबके पास पैसे आने वाले हैं, ओए होए बल्ले बल्ले. All right. Exactly. Like see, small habits can play a role. अभी जैसे तुमने बोला, that is the feeling, that is the vibe. अगर ऐसे ही घर पे बातें हों, है ना, कि अरे और पैसे आ रहे हैं उनके पास, बल्ले बल्ले, सेम. बिकॉज वी हैव हर्ड दोज थिंग्स. अरे यार कैसे उनके पास आया, सो हम भी उसी हैबिट में चले जाते हैं, कैसे आया, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी. इवन सिबलिंग्स में हो जाएगा, रिलेटिव्स में हो जाएगा, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग दैट थॉट प्रोसेस. सब अगर सबके सोचते हैं, पर सच्चाई ये है कि जो सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद वही ज्यादा रिच हो रहे हैं. Let us start celebrating each other. पता है हमारी कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए? सबको बताना चाहिए, ओए हेलो सुनो सुनो, आज मेरे अकाउंट में 500 रुपए आए हैं. And everybody is like, wow, drum rolls, ये करते तो हैं, बहुत सारे ग्रुप्स कर रहे हैं ऑलरेडी. yes. बट मतलब हाँ, एफर्ट लाइक many are there, I would say. Just But the catch is, वो जो एक हल्का सा हमारा दिल ऐसे होएगा ना, हाय उसके हाँ गए, मेरे तो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए. हाँ, ये जो हम फिर इविल आई पे पहुंच जाते हैं और इस बहुत चीजों पे पहुंच जाते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शंस Yes. भी बहुत हैं. हम में से कितने मतलब लोग, हम वी डू, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि नजर लग जाती है? वही बोल रही हूँ कि ये देखो 2 हाथ खड़े कर लिए. I'm not like I believe, because I know people believe. It's not me who is only believing. मतलब I've seen people doing the कि चलो नमक वो सब करते हैं, घर पे होता है, नमक वार लो, things are there. So even we have been taught that thing. है ना, वो रेकी हमारी, लेसन्स में है. वो क्या थी, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे मेंटल कल्चर ऐसे हमारे को बनाया गया. बाहर की कंट्रीज में होता है क्या? आई डोंट नो होता है कि नहीं होता. वी कैन कुछ नॉट नहीं होता. सब सिर्फ ओके. सेलिब्रेट करते हैं, और नहीं कर रहे होते, कई रो भी रहे होते हैं. So what are अच्छा. we going to do from today onwards? You know, last year I told in another mentors group कि 1.5 लाख मिल गया. What happened was उसी टाइम एक गर्ल ने मांग ली और वो 1.5 साल बाद वापस किए हैं. Problem is this. Do Now you मेरे have, अंदर आपका ये लिमिटिंग बिलीफ आपके दिमाग में है कि इफ आई विल हैव मनी पीपल विल आस्क मी फॉर हेल्प? बिल्कुल नहीं था, कभी मांगा ही नहीं था किसी ने, ऐसा कोई बिलीफ ही नहीं था.
आई कैन नॉट से कि है बिलीफ, मुझे पता तो नहीं है फिर बिलीफ है, आई जस्ट जो मन में आ रहा है से, ठीक है। तो ये ऐसे कभी पहले नहीं हुआ था जो मेरे मन में बिलीफ होगा कि, बट हाँ हो सकता है हिडन है, आई हैव टू चेक, वही जैसे तुम बोल रही हो ना, अवेयर करवा रहे हो आप भी कि हो हम सकता लोग है कि, एमएमआई में क्या गए थे ना, तो दे हैड गिवन 72 लिमिटिंग बिलीव्स। हाँ हमें पता 72 नहीं में होता होगा से मतलब। 72 में से एक लिमिटिंग बिलीफ ये भी था कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो लोग मुझसे मांगेंगे क्या, मेरे से हेल्प फिर मांगेंगे। या तो ये है कि मेरे हिडन बिलीफ हिडन है जो मुझे पता नहीं होते बहुत सारे, क्योंकि काफी चीजें होती है मैं कहती हूँ ये तो मेरा बिलीफ है ही नहीं था। मोस्टली हम्म। मैरिज रिलेटेड थिंग्स हैं या वेल्थ रिलेटेड थिंग्स हैं, जैसे लास्ट ईयर क्योंकि आई वाज प्रेइंग गणपति का प्रेयर, तो हो सकता है प्रेयर में है कि प्रेयर करियो पैसा आएगा, आया ना। आई हैड टू पे समवेयर, अंजना आर्मी में पार्ट लेना है, चलो चलो मैनिफेस्ट करते हैं, एंड कोई एनिवर्सरी है सम, पापा जस्ट गिव, उनका मन था, तो 1.5 मिल जाता है। मैंने कही फिर मैंने बता दिया क्योंकि मैम का ही ग्रुप से आ रहा था, वो लॉ प्रोटेक्शन ही पढ़ रहे थे, तो आई टोल्ड कि हाँ मैनिफेस्ट हो गया। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सम गर्ल शी वांटेड एंड शी आस्क्ड फॉर इट। फिर उसके बाद जो मुझे मेरे कोर्सेज में डिफिकल्ट हुआ, देन दिस ईयर एंडिंग शी गेव मी। अब मेरे मन में रिग्रेट आए कि डिड दोज डिफिकल्टीज कम बिकॉज शी वाज हैविंग, मैंने कहा तू ना ऐसे मत सोच कि, आई कैन नॉट थिंक दैट वे, क्योंकि उस अमाउंट से थोड़ी हो सकता है। डू यू नो देयर इज अ रूल ऑफ मनी एज वेल। द रूल हम्म। ऑफ मनी इज किसी को उतना ही लेंड करो कि अगर वो ना दे तो तुम्हारे को दुख ना हो। ऐसा ही होना चाहिए। आई लर्न माई लेसन। एंड यू नो बाई चांस करिश्मा, वी शुड नॉट रिलेट, बट मुझे एस्ट्रोलॉजिकली बोला आपकी फैमिली को नहीं देना किसी को। तो अभी मुझे इसी 2 मंथ्स पहले ही पता लगा। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, तो ही वॉज लाइक दिया है पहले तो भूल, मतलब भूल नहीं जाओ, बट वो वापस आए ना। आई डोंट वांट टू कीप ऑन टॉकिंग, बट जस्ट उसने मना कर दिया, वी डोंट हम्म। हैव टू गिव। तो होगा उसने कुछ देखा कि नहीं करना, मैंने कहा ओके देन, कि ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने भी दिया हुआ है लैक्स में, तो वो है मतलब चाहे रिलेटिव्स का होता है चाहे कहीं पे भी दिया हुआ है। तो और इधर मैंने भी अननोन था, टेलीग्राम पे मिले, फ्रेंड भी कोई नोन नहीं। हाँ, तो 17,000 शी आस्क्ड एंड आई जस्ट गेव की पढ़ाई के लिए चाहिए, ओके ठीक है। आई एम सो लाइक दैट। तो फिर मेरे कोमल को की खुद ड्रॉप, कोमल की एफर्मेशन क्या है आज की। मेरी अफर्मेशन हाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी। हाँ, लेट्स डू द एफर्मेशन। Yeah, let's bring some positive energy in this money aspect. यस। Wealth, 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 and what can be my new affirmations? Mindset change. More I spend, more I generate. वाओ, वंडरफुल। वंडरफुल। Like if I am flowing out, same double होके triple होके वापस आ रहा है। एज आई एक्सेल मनी, उतना ही आई इनहेल मनी एज वेल। Somehow. बिल्कुल, मैम ने आज यही समझाया रेकी क्लास में, इट्स नॉट लाइक तुम रख लोगे, रखने की भावना नहीं है, फ्लोइंग थिंग है मनी। यस। So it has to be when you're blessing, you are saying it is coming from good sources. If we are blessing money, we are saying it's coming from good sources and goes to good sources and coming from good sources. एक तो यही हो गया। दूसरा या लाइक लेट इट फ्लो, इजी फ्लो हो रहा है और इनकमिंग और या। वंडरफुल। सो आई वाज आस्किंग मैम आउटगोइंग तो हो रहा है, इनकमिंग कैसे, मेरा ये क्या वो गड़बड़ है या डर बिठाया हुआ है। So why is it if I'm generous in spending, so how will it be कि incoming का भी I can know the sources? No वाला नहीं है, but I have to just give some affirmation in this. Maybe I don't have. Without bringing any conflict in your mind. Let's hear it, Hmm. Juhi. Let's rehear it from Juhi now. सो एक्चुअली मैं पहले भी बुक रीडिंग करती थी बट वाज नॉट दैट इन डेप्थ। आई नो ऑल दिस, आई मीन आई वाज, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता ही होता है। बट देन यस, अगेन टेकिंग आउट टाइम टू रीड एंड देन टू इम्प्लीमेंट, इट्स अ फ्लो। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के, इन द सेंस कि सम थिंग्स की हमको वो क्या बोलते हैं, बार बार ध्यान देने की जरूरत होती है, दैट यू आर नॉट थिंकिंग नेगेटिव। Hmm. अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तो समवेयर यू हैव दैट योर लिमिटिंग बिलीफ।
Hmm. बिकॉज अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप वो फीड कर रहे होते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ और आई डोंट डिजर्व टू अर्न दैट मच, Hmm. या लोग मेरे पास क्यों आएंगे, लोग मुझे पैसे क्यों देंगे, Hmm. अ, या मेरा कोर्स इतना अच्छा नहीं है दैट दे विल पे मी दैट मच। Hmm. तो ये लिमिटिंग बिलीव्स हम हमारे अंदर घर कर गए हैं, इन द सेंस कि हम, इट इज राइटली सेड कि हम अफर्मेशंस भले ही करते हैं, बट ओवर द मीन्स थ्रू आउट द डे हमको लगता है देयर इज समथिंग लैक कहीं, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल, आई एम, मतलब वो लैक कहीं ना कहीं वो अंदर फुल भरा हुआ है, तभी आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट माय क्लाइंट्स, आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट। तो इट गोज इन एवरीथिंग, इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, कि हम जो सोचते हैं रिलेटेड टू वेल्थ, it affects all the areas, be it your career, be it your relationship, even your relationship with money, एंड पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो, कि अगर मैं लैक फील करती हूँ तो उसमें भी मैं लैक ही फील करती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे पैसे लाके क्यों देगा, राइट? तो वो कहीं ना कहीं लैक फील करती हूँ, बट यस, थिंग्स वर्क इफ वी डू प्रॉपर अफर्मेशंस, इफ वी फील abundant, इफ वी डू इट इन करेक्ट वे। और मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस किए हैं इन आवर मेंटर, मीन्स एक मेटावर्सल स्टार बनाती हैं, आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर, मेटावर्सल स्टार होता है। मैंने उससे 2-3 बार मैनिफेस्टेशन किया है, एंड एंड अभी भी मीन्स द थिंग्स आर टर्निंग गुड, बट विद दैट पॉजिटिव माइंडसेट। तो कहाँ गलत हो रही हूँ वो रियलाइजेशन है, एंड हाउ आई एम अचीविंग दैट ऑल्सो आई एम अवेयर ऑफ। Wonderful. So सो what's the manifest what's the affirmation that you're going to start doing for wealth? So this, by day and night, I am being prospered in all of my interest. Hmm. And this also because I want to attract clients. So my sales is improving every day. I'm advancing, progressing, and getting wealthier every day. वैसे मैं बताऊं, मैं वो करती हूँ that I'm money magnet, money flows to me easily and happily, Definitely. Hmm. and money loves to stay with me, money is my best friend। मतलब वैसे ये And सब भी you have to करती हूँ। feel it as well. Just imagine, मेरा हाँ, best friend है money. Oh. यस। आज मैम ने थोड़ा डिफरेंट बताया था, मेरी टीचर ने, Hmm. कि मैग्नेट और स्टे वो उनका अपना कंसेप्ट है, चाहे शी डजंट से So सच। normally speaking, money is an energy which अब वो बोलते हैं कि फ्लो वाला ज्यादा which बोलो। needs to flow. फ्लो। हाँ, आई नो, बट इसमें ऐसे लिखा हुआ है, बिकॉज आई से दिस, क्योंकि मेरे पहले जो इसमें सारे लिखे हुए ना, दैट वर माई लिमिटिंग बिलीव्स, Hmm. कि मेरे पास आते तो हैं बट मेरे पैसे चले जाते, मीन्स इट कम्स एंड गोज, इसलिए इट डजंट स्टेज विद मी। मतलब कैसे कि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, जितना इनफ्लो होता है Hmm. एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। और बहुत सारे फेयर्स और इनसिक्योरिटीज की वजह से, मीन्स एट द बैक ऑफ माइंड, जैसे इसमें लिखा है दैट इट इज मनी इज हार्ड टू अर्न, ये मेरा बहुत टाइम पहले लिमिटिंग बिलीफ था। Hmm. तो ये सब को रिफ्रेम करके आई थिंक मेरे लिए अभी ये है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, सोर्सेज क्या जनरेट करने हैं। आई आई हैव नॉट लाइक कि कम्युनिकेशन या मुझे यही नहीं पता होता कि मैं कर क्या सकती हूँ लोगों के लिए जो मेरे को मनी स्टार्ट होगा। मेरा फर्स्ट इनिशियल वाला ही ब्लॉक है अभी, कि Hmm. व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ टू सर्व। Hmm. आई नो कि स्पेंडिंग तो बड़ा मजा आ रहा है, कि व्हाट आई एम डूइंग, वर्कशॉप्स कर लिया, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कब तक करोगी वर्कशॉप, कि शुरू Hmm. करो कुछ। लाइक आई वाज वर्किंग थोड़ा टाइम, अभी आई एम ऑन अ ब्रेक, राइट? तो Hmm. आई वाज द टीचर, है ना। उसके बाद कुछ और, मतलब इफ आई हैव टू फाइंड आउट, तो Hmm. हाउ कैन आई से मनी कैन कम फ्रॉम दिस सोर्स एज अ टीचिंग या कुछ भी, मतलब स्टिल सी आप बोलो, स्टिल यू से, बिकॉज क्या मैं बोलूँ पहले कि
I'm ट्यूशंस लेती asking, थी, ठीक है। what should I say? That only I'm हाँ, asking. What तो statements can I say? ओके, यू कैन से आई एम अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, मनी इज Opportunities. फ्लोइंग टू मी फ्रॉम नोन एंड अननोन रिसोर्सेस। Okay. ठीक है। Known in multiple resources, multiple हाँ sources, or हाँ, एनीथिंग, hmm, मतलब इट इट रियली like वर्क्स। मैंने ये देखा है क्योंकि मेरे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे hmm. विच आई हैव ओवरकम। मैं बट जितना मर्जी पढ़ाई कर लूं, जितना मर्जी कुछ भी सीख लूं, मुझे ऐसा लगेगा मुझे आता ही नहीं है, ये कुछ बिठाया हुआ है। तो हाँ, ये तो ब्रेक वही करना आपको है। उसको रिफ्रेम करना है, सब ब्रेक हाँ, करना है। सेम फॉर जॉब, और मतलब कैपेबल उसको, होके भी इट्स अ यू विल थिंक। जर्नी, जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना खुद को एंगेज, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड वंस यू गेट द क्लैरिटी तो ही आप कुछ स्टार्ट करोगे, अरे हाँ ये करने में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इवन आई एम डूइंग या थिंग्स लाइक दैट, कि मैं थोड़े थोड़े जो वेबिनार्स लेती हूँ हीलिंग का या ये, तो यू गेट क्लैरिटी ओनली विथ एंगेजमेंट। तो आप खुद को ऐसे नहीं सोचो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, जस्ट स्टार्ट डूइंग। व्हाट यू हम्म कैन स्टार्ट विद इज, कोमल, जो भी आता है ना उसका वेबिनार लो। कॉल पीपल whom you know, let them be there to support you, and you do the webinar और once you. गार्गी तो अपॉर्चुनिटी देती है एवरी सैटरडे, Exactly. यू कैन स्टार्ट विथ अस ओनली। ओके, तो उसमें लाइक व्हाट शुड बी माय टॉपिक? कुछ भी जो अच्छा लगे। जो अच्छा लगे, अच्छा और वेबिनार। क्या। हम्म। सब सबकॉन्शियस बोल सकते माइंड हो, पसंद आ जो रहा है, भी आता है, उसके बारे पॉजिटिव में बात कर लो। माइंडसेट ले लो, अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ भी अफर्मेशंस। वेबिनार लो, कुछ भी वेबिनार लो जो मन में। 5-6 हम्म टॉपिक्स ढूंढो, कौन कौन से मजे आ रहे हैं जिसके बारे में समझने में, सीखने में, मैं पूरा, हाँ, जाने मैम ने में। बोला। मैं जैसे मुझे हेल्थ टॉपिक बहुत अच्छा लगता है ना, सो मे बी मेनी पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन दिस, सो चैप्टर प्रिपेयर करो और उस पे ले लो, उस पे ले लो, लाइक फूड कोई भी रिलेटेड टॉपिक समथिंग। उठा लो, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक उठा लो, लिमिटिंग बिलीफ्स उठा लो, कुछ भी कर लो, अ, हाँ। कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, हम्म, जो भी आप सीख रहे हो अभी। अपने आप माइंड में आ जाएगा, यू आर थिंक सेइंग कि हाँ टॉपिक माइंड में आ सकता है ना, टेक सो अ शुड बी टॉपिक लाइक टेकिंग। एंड अच्छा, आई वाज अंडरस्टैंड। थिंकिंग वीडियोस बनाओ, बट यू आर सेइंग वेबिनार भी ले सकते हो ना, हाँ। हाँ, वेबिनार जस्ट करो, पोस्ट। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, कि मेरे को इसको हम्म करने में कितना मजा आया कि नहीं आया। मुझे यही नहीं, लाइक ओके देन वर्कशॉप और वेबिनार, दिस थिंग विल बी प्रिपेयरिंग, पीपीटी बनाना है उसका पहले। हम्म ओके, मेक इट एंड डिलीवर। हम्म राइट। हम्म वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वेबिनार नाउ। या वही मैम बोल रहे थे, मैम कहते कब बुक खत्म कर रही हो न्यूट्रिशन की जो पढ़ रही हो, एंड देन व्हेन यू लॉन्च, मतलब जो भी। खत्म भी क्यों करनी है, उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स लो, उसी की इंफॉर्मेशन बता दो लोगों को। किसी को क्या पता या कि पूरी बुक बता रही है कि आधी पूरी बता बुक रही है कि खत्म एक ही करेगी नहीं, चैप्टर हाँ वो बता तो रही है। पूरा बुक तो यू नो ऑलरेडी, मतलब यू नो कि कितना वास्ट होता है। यस, एग्जैक्टली। फर्स्ट हम्म चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर से ही वेबिनार कर दो। सेकंड हाँ, थर्ड माइक्रो फोर्थ फिफ्थ न्यूट्रिएंट्स हो चैप्टर गया, जो है। फैट्स प्रोटीन्स कितना चाहिए, जो मुझे लगेगा लोगों को पता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज द थिंग। हाँ, एग्जैक्टली exactly. और इट्स उसके नॉट आगे ऑलवेज के द थिंग। चैप्टर्स आपका कोर्स बन जाएगा। हम्म हम नहीं खा रहे फैमिली में, सो आई फील सबको पता है, बट इट्स नॉट हम्म लाइक दैट, मेनी पीपल डोंट नो कि जो भी ईटिंग हैबिट जो है सबका। यस। हम्म कोई भी चलो, टॉपिक ऑल डाल द सकते हैं। बेस्ट, टेक केयर। आज या रात को सोने से पहले हम लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं वेल्थ। यस। या जरा एक बार आंखें बंद करके सोच तो लो वेल्थ के बारे में, क्या आ रहा है। ओह, गोल्डन कॉइन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं या जैसे पानी फ्लो करते हैं। आहा। और हम सबके ये जिंदगी में बहुत सारा पैसा आ रहा है, पैसा। पैसे की बारिश हो रही बारिश, अरे तो कह दो, बारिश ही होने वाली है फिर। बारिश होने वाली है। है। यस यस। ट्री ऑफ वेल्थ जैसे भी इमेजिन करो, है ना। यस। या चलो, चलो, तथास्तु। बाय। ट्री ऑफ तथास्तु वेल्थ। टू ईच वन ऑफ यू, तुम सबको कोई तथास्तु। कॉइन देख रहा सारी है, कोई चीजों ट्री को। देख रहा है, सो एवरीबडी इज इमेजिनिंग एनीथिंग। Yes. यस। आजकल नहीं, वो पता नहीं, बहुत ज्यादा अबंडेंस वाला ट्री दिखता है मेरे को। जब इंस्टाग्राम की फीड पे जाओ ना, तो देर आर ट्रीज, उसमें से गोल्डन कॉइन्स गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। लाइक वाओ, ब्यूटीफुल। यस,
चलो, सब ट्री मैनिफेस्ट करूंगी पूरा। टेक केयर ऑफ है ना? योर सेल्फ, Tree गुड is नाइट। like your imagination, imaginary tree can be anything ना। इन्वेस्टमेंट का ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता यस, है। या एब्सोल्युटली। टेक केयर, गुड बाय। नाइट, एंड नेक्स्ट वीकेंड पे वी विल बी रीडिंग, आई विल send reminder as well now. I know that you need reminders. Chapter number 10, which 10. talks about your right to be rich. You are deservable. You deserve to be rich. And उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Come Yes. prepared. I would love for you, Komal, to read the chapter. All right. करिश्मा, how to manifest this thing कि align the Can timing I of take your the leave? different Sorry, we session. can continue. Can I Oh, take your leave? Good night. ले लो. Good night. good God bless night. you. Yeah, Bye. God bless you. bye bye. See you next week. Bye. Yes, Bye. definitely. अरे Bye. हो Bye. पाएगा तो 4:30 बजे और रात को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे भी बुक रीडिंग सेशन होता है. I ट्राई. हाँ, यही मैं am कह रही थी कि starting to अलाइन love करना, it. I'll टाइमिंग definitely मैच हो join. सब। ठीक या है. गॉड ब्लेस यू. सी यू टुमारो. बोलो. या आई वाज आल्सो आस्किंग ऑन द सेम टॉपिक कि टाइमिंग अलाइन हो। हाँ, टाइमिंग अलाइन हो, कुछ नहीं करना है उसके लिए. हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फोन उठाओ, फोन में नो, खोलो. आई मेंट कि जो जैसे आई मेंट डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो जैसे 11 आपका 11 हो टाइमिंग है रही है. ना। 11 11 हो रहे हैं. तुम्हारा अलार्म सेट हाँ, करा रही हूँ मैं. वही हो लगाओ. जाएगा आई गेस। क्लॉक. क्लॉक खोलो, क्लॉक. आई वाज सेइंग कि 10 पीएम का करना ही ना पड़े, करिश्मा 8 पीएम करने लग जाए क्लास या कुछ और टाइमिंग। दैट इज माय थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, यू डिडंट अंडरस्टैंड। करो मैनिफेस्ट, क्या पता हो जाए. हाँ, ये कह रही थी ऐसा अलाइनमेंट कब हो, 11 11 हो गया, हो जाएगा अब। क्या पता भगवान भी सुबह बोलेंगे 7:30 बजे पढ़ाना शुरू कर दूं, 10 बजे की जगह. यस, यस आई हैव एम्पल टाइम, कभी भी मॉर्निंग फुल डे इज फ्री। मतलब मॉर्निंग वाला टिल या 7:30, व्हाई नॉट, एनी टाइम 4:30 मॉर्निंग। इतना नहीं हो रहा. या एनी टाइम, लेट्स सी चलो, क्या होता है। क्लॉक खोलो. नहीं, क्लॉक ओके। खोलो अपने फोन में. या अब क्लॉक के अंदर अलार्म को क्लिक करो. ओके, ऑलरेडी हाँ अलार्म थिंग इज देयर। ठीक है. उसके अंदर ऊपर ये प्लस वाला साइन आ रहा है, प्लस को क्लिक करो. ओके, इसके ऊपर अलार्म डालो 4:30 का. मॉर्निंग नहीं, पीएम. पीएम। आई हैव सम अनदर क्लास, दैट इज इशू कमिंग अप। चलो 9:55 का लगाओ, जल्दी करो, आगे करते हैं. 9:54, 4:30 definitely I would have come. हम्म. So some other she had to take at 1 p.m. ओके. She started taking my dance or something, whichever we do, mirror affirmations. She started to take at 5 or 4:30. Then I could not like this thing I was talking about, how to align every कोई thing. बात Yeah. नहीं. 9:57 No. पीएम कर लगाओ. इसके बाद नीचे लिखा होगा रिपीट. उसको अगर क्लिक True. करोगे ना, तो आप 9:55. Repeat. उसके Once or अंदर. daily? Daily. हाँ, डेली. Yeah. अब उसको So that. सेव कर दो. Hmm. True. So yeah, daily would be obviously done thing, huh? ठीक है ना. अब Right. ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. अब आपका फोन आपको अपने आप याद कराएगा कि कोमल अपनी फोन क्लास याद में जाके दिलाएगा। बैठ जा. मेरे साथ पहले तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था, अभी तो जैसे सिंपली शी केम एट 1 p.m. लेट्स डू दिस थिंग, देन शी स्टार्टेड टेकिंग एट 4:30 or something. I could not even say her There are that what is times, this. there are times when things do not align at the right Yeah, time. So it's okay. yeah, because this was my testing going on somehow. ये बहुत ज्यादा हुआ मेरे साथ। एक प्रोग्राम करती थी, मैं कहती थी दूसरा भी इसी टाइम आ गया, तीसरा भी इसी टाइम आ गया। सो It's okay. विच टू चूज, एक तो पहले ये गेम चल रहा था विच वन टू चूज। हम्म. दोनों टीचर अच्छे लग रहे होते थे, सेम सब्जेक्ट सेम टीचर्स, बहुत हम्म. ज्यादा, एंड आई वुड गेट कन्फ्लिक्ट। स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो फिर भी कन्फ्लिक्ट कि कौन सा टीचर चूज करूं। कोई बात नहीं, कोई बट बात अब ये जो डेलना मैम मिले हैं ना, आई हैव बिकम लाइक स्टेबल ओवर हियर। बट. दैट थिंग इज गॉन, दैट वाज फेज गोइंग ऑन। जो हम्म. सितंबर अक्टूबर में था, आई वाज विद 1 2 3 4 टीचर्स है, सब किसी को भी सबको अब कर रही थी। देन आई हम्म. वाज अलाइनिंग की टाइम कैसे अलाइन करो, अरे इसका चल रहा है, इसका कर रहा है, मैं समथिंग वेरी लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज डूइंग।
So what happened was Della ma'am came and then I मतलब फिर काफी सबको alignment छोड़ हो गई. दिया, फिर मेरे को लगा हाँ दिस इज द राइट मेंटर फॉर मी. Yeah, somehow I don't want to say कि मतलब बिलीफ नहीं बनाना चाहती कोई इसके ऊपर. फिर वही डर आ रहा है ना इसका मतलब कि चले ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये सब अभी भी कुछ इसका नहीं मतलब होने है ना वाला डर. है, कुछ नहीं हम्म. होने वाला है. अब तो सब मतलब अच्छा ही. उन्होंने मुझे शायद पकड़ लिया है अपने आप ही. इफ मैंने नहीं पकड़ा तो उन्होंने पकड़ लिया एज अ गुरु से गुरु शिष्य इज द वर्ड हिंदी. सो Yes. दैट इज द थिंग. उन्होंने पकड़ लिया तो 3rd लेवल पे पहुंच गई हूँ रेकी का. Wow. और वो बोल रही है समथिंग ब्लेसिंग ही है. यू आर द लकी वन. करुणा रेकी. आई बिकम डिस्टेंस हीलर नाउ Wow. एंड आई कैन अर्न फ्रॉम देयर. मैम बोल रहे थे ना पर्सनल सेशन बहुत लिया करो मैम के साथ. तो तो व्हाट करो. हैज हैपेंड, हाँ वही जर्नी देखो ना, इतना पर्सनल सेशन भी थर्ड राउंड चल रहा है पर्सनल का. वाह. मतलब फर्स्ट राउंड है 6 सेशन पर्सनल के हो गए. फिर सेकंड कंप्लीट हो गया, अभी थर्ड स्टार्ट हो गया. सेकंड का पेमेंट देना है बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि चल क्या रहा है. तो मतलब हाँ ऐसा ही. वो गार्गी के साथ खुद लर्न कर रहे हैं हाउ टू मेक पैकेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स. बट Yes. मेरे को जब वहां आए आई वाज नॉट एबल टू रेजोनेट विद गार्गी दैट टाइम जून तक. बट हाँ ये अभी यही बता रही हूँ ना आपको तो कि ये एक वो मतलब यहाँ ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना. इट मीन्स विद द Yes. टीचर आई से. तो मैम को सब बताती हूँ कि करिश्मा के साथ ये कर रही हूँ. जो भी एक फ्रेंड वाला विकास सर के पास अभी ये भी बता रही है मॉर्निंग क्लब कर रही हूँ. और ये हर चीज डिस्कस हो रही है लाइक अ मदर या अपनी मॉम को जैसे बात करते हो. तो आप करते ही हो अपने टीचर के साथ भी मोस्टली. मतलब आई डू. हाँ अगर इतना पर्सनल सेशंस हैं तो बिकॉज शी इज राइटिंग लाइक अ साइकोलॉजिस्ट. शी इज नोटिंग डाउन एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग. कि बोल रहे होते हैं ओसीडी नहीं है कोमल, आप इतना बनाते हो. ओसीडी नहीं है. yesterday और डे बिफोर इट इज वेरी माइल्ड. शी विल सेइंग कि वो पीछे जा चुका है 10 years बैक आपका पास्ट. Yes. दैट थिंग शी सेज. नाउ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड आई थॉट आई सो. Sorry. Okay. Bye bye. Good night. God bless you. Let me stop the recording.